A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidwapar, Badarganj. Today we are going to discuss human reproduction, last topic or second last topic I can say, pregnancy and embryonic development. 50% we have discussed, remaining part we will discuss today. Then after that parturition and lactation. So students, in the yesterday's video we have discussed that epiblast will form the baby and how amnion, yolk sac, allantois were formed. Allantois I have not told you, and I have also written the wrong spelling of allantois. So today I have corrected that spelling. This will be the spelling of allantois, and what allantois are in the today's video I will explain to you. So this is the third week after fertilization, because we have discussed in the first week implantation is done, then in the second week that trophoblast and other layers were being formed. Then today in the third week of fertilization there will be a cavity formed in the epiblast, which will be starting it will be straight, then after circular like this. This is epiblast, and epiblast in the starting a straight cavity will be formed, then where the straight cavity will end, there a circular cavity is going to form. The yolk sac which we have seen, the extraembryonic coverings present around the baby, this yolk sac will grow little bit extra in the umbilical cord, and that extra yolk sac which is grown in the umbilical cord will be called as allantois. यानी yolk sac का कुछ पार्ट जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड में जाके ग्रो करने लगेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, allantois. तो ये जो एपिब्लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे और क्लियर दिखेगा कि ये क्या है, एपिब्लास्ट के अंदर ये पतली वाली कैविटी है, स्ट्रेट लाइन वाली, इसे क्या कहेंगे, प्रिमिटिव स्ट्रिक. और वो जब प्रिमिटिव स्ट्रिक खत्म होके जहाँ सर्कुलर कैविटी बनेगी उसे कहेंगे प्रिमिटिव नोड. In the epiblast, the line is called as primitive streak. In the cavity is called as primitive node. यानी कि जो लाइन है अभी बताया उसको क्या कहेंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक, और जो कैविटी है सर्कुलर उसे क्या कहेंगे, प्रिमिटिव नोड. After its formation, it is decided in which side baby's head and leg will be formed. प्रिमिटिव नोड और प्रिमिटिव स्ट्रीक के बनने के बाद ही ये डिसाइड होता है कि किस तरफ बेबी का सर बनेगा और किस तरफ उसके पैर बनेंगे. प्रिमिटिव नोड will form baby's head and primitive streak will form baby's leg. Whole embryo will be formed here now. तो अब जो है बेबी का सर कौन बनाएगा, प्रिमिटिव नोड, और बेबी का जो लेग है वो कौन साइड बनाएगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक. स्टार्टिंग ऑफ द 2 months ऑफ प्रेगनेंसी हम बेबी को क्या कहेंगे, पहले एम्ब्रियो कहेंगे, और जब 2 months बीत जाएगा उसके बाद 3 months से लेके 9 month उसको फीटस कहेंगे. Cells of epiblast will jump in the primitive node and comes out from the primitive streak and destroys the layer of hypoblast just below it and forms a new layer. तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एपिब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, प्रिमिटिव नोड के अंदर जंप करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे जहाँ हाइपोब्लास्ट है यहाँ पर आके धीरे धीरे अरेंज हो जाएंगे, और अरेंज होने के बाद ये क्या करेंगे, हाइपोब्लास्ट इस लेयर को डैमेज कर देंगे. मूवमेंट ऑफ एपिब्लास्ट सेल इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन. यानी कि ये जो एपिब्लास्ट सेल की जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन. नाउ 3 layers ऑफ सेल विल बी फॉर्म्ड. अब इस एपिब्लास्ट के सेल के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, 3 लेयर जो आके बन जाएंगी. तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो सेल्स हैं ये जो जंप करके ये बाहर की तरफ आती हैं, ये लेयर हो गई, एक लेयर इन सेल्स की हो गई, और एक जो ये बीच वाली है. तो वो एपिब्लास्ट की सेल्स जो कि यहाँ पे रह जाती हैं एपिब्लास्ट के अंदर, इसे क्या कहते हैं, एक्टोडर्म. एपिब्लास्ट की वो सेल्स जो कि एपिब्लास्ट से बाहर आके हाइपोब्लास्ट को डैमेज कर देती हैं, सबसे नीचे वाली, उसे क्या कहते हैं, एंडोडर्म.
और जो बीच वाली जो कुछ सेल्स जो बच जाती हैं, जो लूजली पैक्ड सेल्स होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मीजोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म मिलके ही क्या बनाते हैं? 3 जर्म लेयर्स। Upper layer of epiblast cells is called as ectoderm. The cells of epiblast which have destroyed hypoblast by forming a layer of cells which will be called as endoderm. The loosely packed cells in the middle will be called as mesoderm. ये मैंने बता दिया. Gastrulation is formation of 3 germ layers from epiblast, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, and from these layers baby will be formed. तो gastrulation क्या है? इसी तीनों जर्मिनल लेयर्स का बनना एपीब्लास्ट से। और ये जर्मिनल लेयर कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और यही तीनों जर्म लेयर्स पूरे के पूरे बेबी को, फीटस को बनाएंगे। ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमंस कम फ्रॉम दीज जर्म लेयर्स। यानी जब फीटस मदर के अंदर डेवलप होता है तो जो चारों के चारों जो टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, चाहे वो एपिथेलियल टिश्यू हो, मस्कुलर टिश्यू हो और और भी जो चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू है, ये सारे टिश्यूज इन्हीं जर्मिनल लेयर से बनती हैं। तो एक्टोडर्म से क्या बनेगा? नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टोडर्मल लेयर से बनता है। मीजोडर्म क्या बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड, बोन, मसल्स ये सब बनाएगा। और एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म के तीनों ही पार्ट से जो एपिथेलियल लेयर है हमारे पूरे बॉडी पे, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स पे, ये एंडोडर्म से बनती है। अब कुछ एनसीईआरटी जो है वो रीड कर लेते हैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी था। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। तो एनसीईआरटी में बीच का बहुत सा हिस्सा जो है वो काट दिया है, लेकिन इसको बेटर समझने के लिए और जो भी कवरिंग्स, एमनियन, योक सैक भी कैसे बनता है कैसे नहीं, एनसीईआरटी में चीज नहीं बताया, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी डायरेक्ट ही ये कह दे रही है कि जो इनर सेल मास है यानी एम्ब्रियोब्लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, एम्ब्रियोब्लास्ट की ही जो आउटर जो एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन होने के बाद एक बाहर की तरफ लेयर बनती है जिसको एक्टोडर्म कहते हैं, और अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? एंडोडर्म। अ मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा? एक मीजोडर्म। These 3 layers give rise to all tissue organs in adults. तो अभी मैंने बताया कि यही जो तीनों जर्मिनल लेयर्स हैं, यही बेबी के अंदर सबसे पहले क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से क्या बनाएगा? ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन से ही क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा एडल्ट्स के अंदर। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनर सेल मास के पास कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल। और स्टेम सेल कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिनके अंदर ये पोटेंसी, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो नए टिश्यूज और ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं। तो अब हम लोग पहले समझ लें कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स आर प्लूरिपोटेंट सेल्स एंड दीज सेल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ अदर टाइप ऑफ सेल्स। यानी कि स्टेम सेल क्या होते हैं? प्लूरिपोटेंट सेल होते हैं जो कि और तरीके के सेल्स को पैदा कर सकते हैं या बना सकते हैं। स्टेम सेल्स आर फाउंड इनसाइड आवर बोन मैरो एंड बाय माइटोसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सेल्स। अगर आपको याद होगा तो क्लास 11th में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारी बोन मैरो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहता है। और ये स्टेम सेल्स डिवाइड करके चाहे आरबीसी बना सकते हैं, डब्ल्यूबीसी बना सकते हैं या प्लेटलेट्स भी बना सकते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जैसे हमारे स्किन की सेल है, जैसे हमारे स्किन की किसी भी सरफेस की ये सेल होती है, तो स्किन की सेल है वो निश्चित है कि वो स्किन का ही पार्ट बनाएगी। बोन की सेल है तो बोन का पार्ट बनाएगी, या फिर नर्वस टिश्यू की सेल है तो नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाएगी।
लेकिन स्टेम सेल जो सेल होती है वो कोई भी सेल बना सकती है, ठीक है। What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? यानी कि क्या फीचर्स होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है उसमें। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स? फाइंड आउट। तो ह्यूमंस के अंदर प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ्स की होती है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि डॉग्स, एलिफेंट्स और कैट्स के अंदर कितनी होती है। तो मैं बता दूं, डॉग्स के कैट्स के अंदर 2 मंथ्स की होती है और एलिफेंट्स के अंदर अराउंड 2 years, दैट इज 18 मंथ्स की होती है प्रेगनेंसी। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे एक टेबल बनाया है मैंने। टेबल में से ये समझ लीजिए जितने एनसीईआरटी में जिस जिस मंथ के लिए दिया हुआ है उस मंथ को मैंने भी इंक्लूड किया है। जैसे कि जब फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो हार्ट इज फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो। अभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया कि पहले 2 मंथ तक हम एम्ब्रियो कहेंगे, यानी फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी में जो बेबी ग्रो कर रहा है मदर की वूम्ब के अंदर वो एम्ब्रियो होता है। 3rd मंथ से लेके 9 मंथ तक हम वर्ड जो यूज करेंगे वो होगा फीटस। तो फर्स्ट मंथ में क्या होगा, एम्ब्रियो के अंदर हार्ट का जो डेवलपमेंट होगा वो हो जाएगा और प्लस हार्ट बीट भी हमें सुनाई देगी। तो फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो जैसे प्रेगनेंसी, अगर कोई पूछे कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन क्या होता है तो आप लोग ये कहेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन हो गया वो प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन है, लेकिन नहीं, प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन क्या है ग्रोइंग फीटस का, उसकी हार्ट बीट। यानी जैसे ही हार्ट बीट आने लगती है तो इसका मतलब फीटस जो है वो ग्रो एंड डेवलप कर रहा है। तो ये फीटस गलत वर्ड है, एम्ब्रियो का हार्ट साउंड आप कब सुन सकते हैं, जब फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड होती है। उस टाइम पे बेबी का जो हार्ट है वो बन चुका होता है। इन द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लिम्स डिजिट्स आर फॉर्म्ड। यानी बेबी के जो एम्ब्रियो के जो हाथ पैर होते हैं वो सेकेंड मंथ में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 3rd मंथ में क्या होता है, बाय द एंड ऑफ 12 weeks first trimester most of the major organ systems are formed, for example the limbs and external genitalia organs as are well developed। यानी 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, अभी लिम्स की हम लोग ने बात कर लिया, ये सब फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ट्राइमेस्टर, आप एक वर्ड सुन रहे होंगे कि ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर इज द ग्रुप ऑफ 3 months। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पहला ट्राइमेस्टर होगा, 4th, 5th, 2nd दूसरा ट्राइमेस्टर होगा और 7th, 8th और 9th तीसरा ट्राइमेस्टर होगा। यानी कि ये जो तीनों को मिला के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीनों का ग्रुप क्या कहलाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर और 7th, 8th, 9th ये क्या हो जाएगा, 3rd ट्राइमेस्टर। ठीक है। 4th मंथ के बारे में एनसीईआरटी में कोई भी डिटेल नहीं दी हुई है कि 4th मंथ में क्या होता है, इसीलिए हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। 5th मंथ में क्या हो जाएगा, हेयर ऑन हेड, फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ फीटस। यानी बेबी के सर पे, फीटस के सर पे बाल आ जाएगा और उसका मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। 6 मंथ प्रेगनेंसी में क्या होता है, हेयर ऑन होल बॉडी, आईलिड्स आर सेपरेटेड एंड आई लैशेज आर फॉर्म्ड या ग्रोन। 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी के पूरे शरीर पे बाल आ जाएंगे, छोटे छोटे। आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, पहले आईलिड्स बिल्कुल अटैच रहेंगी लेकिन अब आईलिड्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बेबी आईज ओपन करने लगेगा, लेकिन हाँ आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और आई लैशेज जो है वो बन जाएंगे। अब 7th और 8th में भी नहीं दिया है, एनसीईआरटी में कुछ भी मेंशन नहीं है कि 7th एंड 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, क्या डेवलप होता है, क्या नहीं। 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में लिखा है कि जेस्टेशन इज कंप्लीटेड एंड चाइल्ड बर्थ इज डन
विच इज कॉल्ड एज पार्ट्यूरेशन। तो यहाँ से ये एनसीईआरटी के भी पेज नंबर 54 देखिएगा। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ एयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month. By the end of about 24 weeks, end of second trimester, the body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. यानी कि पूरी प्रेगनेंसी अगर देखी जाए तो कितने महीने की होगी, कितने हफ्ते की होगी। अगर मंथ्स की बात करें 9 और वीक्स की बात करें तो 36 वीक, क्योंकि एक महीने में 4 वीक्स होते हैं तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो 36 वीक में पूरा का पूरा फीटस डेवलप हो जाएगा। 12 वीक्स में क्या होगा कि 12 वीक्स जब खत्म होंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे। जब सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होगा यानी 24 वीक्स के एंड में बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर आ जाएंगे, आईलिड सेपरेट हो जाएंगे और आई लैशेस बन जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। जैसे ही 9 months ऑफ प्रेगनेंसी पूरी होगी फीटस जो है वो पूरा तरह से डेवलप हो जाएगा और अब वो डिलीवरी के लिए रेडी है। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर दैट इज पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। तो यहाँ पे मैंने ये डेटा लिखा भी हुआ है कि क्या है। ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 months होती है, डॉग की 2 months, कैट की 2 months, एलिफेंट्स की अराउंड 18 months, तो 2 years लिखा हुआ है। अगर कोई भी इसमें डॉग, कैट या एलिफेंट का एक बार गूगल भी कर लीजिएगा कि क्या करेक्ट डेटा है प्रेगनेंसी का। ग्रुप ऑफ 3 months इज कॉल्ड एज ट्राइमेस्टर। अभी लिख के भी बताया था कि 3 महीनों के ग्रुप को क्या कहेंगे, ट्राइमेस्टर। अब आ जाते हैं पार्ट्यूरेशन पर। पार्ट्यूरेशन को चाइल्ड बर्थ, लेबर या सबसे कॉमन आम बोलचाल की भाषा में डिलीवरी भी कहते हैं। तो लेबर या डिलीवरी आप बोर्ड्स के कॉपी में अगर कोई इससे क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप नहीं लिखेंगे, तब आप जो टर्म यूज करेंगे या तो पार्ट्यूरेशन होना चाहिए या तो चाइल्ड बर्थ। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months विच इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। अभी पढ़ा कि ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 9 months होता है, जब तक बेबी जो है वो मदर की वूम्ब के अंदर रहता है 9 महीने तक। इस समय को क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्जन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। यानी कि अब क्या होता है, जब जैसे ही प्रेगनेंसी में 9 months पूरे हो जाते हैं तो यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेगनेंसी के एंड में बेबी का जो एक्सपल्जन यानी कि बेबी जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, जिसे कि डिलीवरी ऑफ द फीटस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। यानी यही बेबी का मदर की वूम्ब से बाहर आना, सर्विकल कैनाल से होते हुए वेजाइनल कैनाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल को हम लोग दोनों को मिला के क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। और ये प्रोसेस क्या होती है डिलीवरी के बेबी की, पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल्स for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contractions called fetal ejection reflex। तो पार्ट्यूरेशन के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे एंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं कुछ रिसेप्टर्स जो है जहाँ पे नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, इसीलिए से क्या कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन। और सिग्नल पार्ट्यूरेशन का इंड्यूस कौन करता है, यानी कौन सी चीज है जो कि पार्ट्यूरेशन को इंड्यूस करती है, तो वो फीटस खुद होता है जो कि 9 months के एंड होने के बाद ये पार्ट्यूरेशन की प्रोसेस को इंड्यूस कराता है बाय रिलीजिंग सम काइंड ऑफ हॉर्मोन्स जो कि मदर के पिट्यूटरी को जाके अफेक्ट करता है। अभी मैं आगे ये बताऊंगी। और मदर की पिट्यूटरी इन रिजल्ट कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो कि यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है, मस्कुलर वॉल, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पे हो गया, ये हम लोग ने पढ़ा। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी।
ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन क्या है, मदर की पिट्यूटरी से रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद ये यूट्रस की जो मायोमीट्रियम की वॉल है ये उस पर जाके अफेक्ट करता है। अफेक्ट करने के बाद मदर की पिट्यूटरी से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता रहता है और ये जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उतना ही ज़्यादा मायोमीट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही जल्दी जो है वो बेबी जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। This the stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues resulting in stronger and stronger contraction। यानी ये जो रिफ्लेक्स है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन का, इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बढ़ता ही जाता है। दिस लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल पार्ट्यूरेशन। इसी की वजह से यूट्रस से क्या होता है, बेबी जो है वो बर्थ कैनाल की तरफ पुश होता है और बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्यूरेशन। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। तो जैसे ही बच्चा जो है वो डिलीवर होता है, बाहर आ जाता है बर्थ कैनाल से, तो प्लेसेंटा भी बच्चे के साथ बाहर आ जाती है यूट्रस के। अब आपको ये पता करना है कि डॉक्टर्स क्या इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से डिलीवरी जो है वो होती है। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, ये एक फुली डेवलप्ड फीटस है, ठीक है। ये इसका क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है, बेबी जो प्लेसेंटा जिसमें ये कवर्ड है पूरा का पूरा। इसके बाहर क्या है, यूट्रस की एंडोमीट्रियम, उसके बाहर मायोमीट्रियम, ठीक है। During pregnancy, there is lots of progesterone in female's body as this is the pregnancy hormone and it is important because it keeps the uterus still without any contraction। यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ही प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन को ही प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्लस प्रोजेस्ट्रॉन की जरूरत पूरे के पूरे 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में इसलिए भी होती है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन ही यूट्रस को स्टिल करके रखता है। यानी प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। अगर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा तो बेबी क्या है, बाहर की तरफ पुश हो जाएगा। इसीलिए यूट्रस को स्टिल करके रखने में कौन हेल्प करता है, प्रोजेस्ट्रॉन। But at the end of pregnancy, there should be some contraction for that level of progesterone should be lowered। लेकिन जैसे ही 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है तब तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तभी जो है बेबी जो है वो बाहर निकलेगा। इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन विल बी लोवर्ड बाय एस्ट्रोजन। तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन का जो लेवल है उसको लो करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन। Fully developed fetus and adrenal glands release lots of androgen and will be taken by fully developed placenta and will convert it into estrogen। Now estrogen will affect the level of progesterone। यानी ये जो fully developed placenta fetus है ये क्या करेगा, इसके जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं वहां से ये एंड्रोजन हार्मोन जो है वो उसको रिलीज करेगा और जो कि इसका प्लेसेंटा उस हार्मोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एस्ट्रोजन में। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है उसको कम कर देगा। एस्ट्रोजन विल इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन मायोमीट्रियम। तो जो यूट्रस की जो मायोमीट्रियम वाली वॉल होती है, मस्कुलर वॉल, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही किसमें हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में, जो कि अभी हम लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा। When there is increase in number of oxytocin receptors from the anterior pituitary of mothers, oxytocin is released in a small amount। यानी कि ये क्या होता है कि जो मदर का जो पिट्यूटरी होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से थोड़े थोड़े अमाउंट में जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स का जो नंबर है जो कि मायोमीट्रियम में इंक्रीज होने लगता है
तो ये स्मॉल अमाउंट में रिलीज हुआ ऑक्सीटोसिन भी क्या करता है, ये जो मायोमीट्रियम के अंदर इस रिसेप्टर्स को जाके बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को और इंक्रीज करना स्टार्ट करने लगता है। Oxytocin contracts smooth muscles of myometrium due to which baby starts to move in cervical canal which causes lot of pain to mothers. तो जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन मदर की पिट्यूटरी रिलीज करना स्टार्ट करती है उतना ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मायोमीट्रियम के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। और मायोमीट्रियम के अंदर जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है तो बेबी जो है वो नीचे बर्थ ये सर्विकल कैनाल के तरफ पुश होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे ही अब सर्विकल कैनाल का जो साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है, अब इसमें एक बेबी जब अपना हेड घुसाता है निकलने के लिए बाहर पुश करता है तो मदर्स को इसीलिए कहते हैं लेबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, यानी कि कहते हैं ना कि 200 की 250 ऐसी कुछ हड्डियों के टूटने के बराबर का पेन होता है मदर्स को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। So this is why we should always respect and love our mothers, क्योंकि mothers बहुत patiently हमें 9 months अपने womb में रखती हैं, बहुत कुछ हमारे लिए बर्दाश्त करती हैं। So they are meant to be respected. तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे बेबी जो अपना हेड सर्विकल कैनाल के अंदर पुश करता है, पुश करने के साथ ही और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जो है वो मदर की पिट्यूटरी रिलीज करती है। तो जितनी ज़्यादा ये पिट्यूटरी से जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। सर्विकल कैनाल हैज सम स्ट्रेच रिसेप्टर्स विच गिव्स स्टिमुलस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे जैसे बेबी जो है वो सर्विकल कैनाल की तरफ आता है तो सर्विकल कैनाल के अंदर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करते हैं और पिट्यूटरी से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए कहते हैं। The more the cervix will be stressed due to baby's head movement, more oxytocin will be released by mother's pituitary and it will contract the myometrium for the baby's downward movement. यानी जितना ज़्यादा सर्विक्स स्ट्रेच होगा बेबी के हेड मूवमेंट की वजह से उतना ही ज़्यादा मदर की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और जितनी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा मायोमीट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी जो है वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक एंड विल बी कंटिन्यू टिल बेबी कम्स आउट थ्रू बर्थ कैनाल। तो ये तब तक ये इसको हम क्या कहेंगे, अभी तक हम लोगों ने नेगेटिव फीडबैक ऑफ हॉर्मोन्स पढ़ा था, ये पॉजिटिव फीडबैक है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक बेबी जो है वो बर्थ कैनाल से बाहर नहीं आ जाता। तो लास्ट टॉपिक है द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। यानी जो फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है वो डिफरेंशिएशन होना उसके अंदर स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे और जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होने लगती है तब क्या होता है मदर्स की जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और इस मिल्क के प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम स्टार्ट होने को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। तो इससे जाहिर सी बात है मदर किसको नरिश करेगी, न्यूबॉर्न बेबी को। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn babies। तो ये जो मदर का जो स्टार्टिंग में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है जो कि इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि कहते हैं कि 6 महीने तक बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मदर की मिल्क में बहुत ढेर सारे एंटीबॉडीज होते हैं। तो इनिशियल में जो मिल्क निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में एंटीबॉडीज होते हैं क्योंकि बेबी अभी तक मदर के अंदर एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है और कोई भी डिजीज या एज सच मतलब वायरल डिजीज को छोड़ दिया जाए तो एज सच कोई बुरे चीज़ों से वो प्रोटेक्टेड ही रहता है।
लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाता है, वो जब अपने से ब्रीदिंग करना स्टार्ट करता है, तो कई चीज़ें हैं जो उसको बीमार कर सकती हैं, क्योंकि अभी तक उसकी इम्यूनिटी जो है वो फुली डेवलप नहीं हुई है। तो इसीलिए ये जो मदर के जो मिल्क से जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बेबी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। यानी कि स्टार्टिंग 6 मंथ्स ऑफ द बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये डॉक्टर रिकमेंडेड चीज़ें हैं। अगर बेबी को इन फ्यूचर आपको हेल्दी बनाना है, उसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग करना है, तो जितना चाहे, मतलब 6 मंथ्स तो बहुत कम है, एटलीस्ट 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स तक अगर बेबी को मदर्स जो है वो मिल्क फीड कराए, ब्रेस्ट मिल्क, तो इससे बेबी के जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बाय दिस थर्ड चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि कोई नोट्स की पिक्चर्स नहीं भेज रहा है, इतना कहने के बावजूद भी नहीं भेज रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो, क्योंकि मुश्किल से 2 4 5 व्यूज ही है वीडियो के ऊपर, इससे ये भी समझ में आता है। प्लीज पढ़ाई कीजिए, कोई पता नहीं कि अगले साल कोरोना रहे ना रहे, तो अगर एग्जाम हो गया तो इसके लिए कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना जरूरी है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, but continue with your studies. Thank you.